दिस क्वेश्चंस आर आल्सो इन योर नोट्स, एंड में, एकदम एंड में, लास्ट के 20-25 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा होगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके एंड के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है. इफ योर नोट्स यू कैन आल्सो टिक मार्क देयर. Those who cannot solve within a time, they can never complete their paper within the time. Try to understand. Time is very essence. So, total cost of producing 9 units is 85. 9 units की cost 85 and average total cost of 10 units is 10. So, what is the marginal cost? Marginal cost of 10th unit is total cost of 10th unit minus total cost of 10th unit minus total cost of 9 units. You have total cost of 9 units, which is 85. Can't you find out total cost of the 10 units? Yes. If you know the average cost, multiply by output. Average cost, average total cost of 10 units is 10. So total cost is 100. So total cost of 10 units is 100 minus total cost of the previous unit 9 units is 85. 100 minus 85, answer is 15. Marginal cost of the 10th unit is 85. ठीक है. Next, answer is rupees 15. Your target should be within 1 minute. Always remember, within 1 minute, because you have 100 questions and you have only 120 minutes, and you don't get reading time of 50 minutes for the objective type of questions. और उसमें भी मैं बोल रहा हूँ, there are many centers जो आपको exactly 2 बजे पेपर देंगे. पहले OMR शीट वगैरह 2 बजे देंगे, तो उसमें 10 मिनट चले जाएंगे आपको सब फिल करने में. So effectively you will be getting like 110 minutes only to write 100 questions. You must have the speed. And ये मैं पोल इसलिए रख रहा हूँ कि so that everyone will participate and within a given time. Next question. The average cost of producing 5 units is rupees 6. Average cost of producing 5 units is rupees 6 and average cost of producing 6 units is rupees 5. What is the marginal cost of 6th unit? They ask you marginal cost, additional cost. ठीक है. So, what is marginal cost of the 6th unit? Marginal cost of the 6th unit is total cost of 6 units minus total cost of 5 units. Total cost of 6 units minus total cost of 5 units. They have given you average total cost or AC, average cost of 5 units is 6. 5 multiplied by 6. Average multiplied by quantity is a total. Average multiplied by quantity is a total. अगर आप एवरेज फीस कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट टोटल फीस कॉस्ट. अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट.
एंड अगर आप एवरेज कॉस्ट को टोटल से मल्टीप्लाई करते हो तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी. सो 5 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट इज 30 and average cost of producing 6 units is 5. As you produce more and more, average cost initially decrease होती है, right? Average cost decrease होगी. So 6 units की total cost is also 30. 5 units की total cost is 30. 6 units की total cost is also 30. 30 minus 30 is 0. Answer is 0. Answer is 0. Next. One minute 30 seconds देने वाला हूं मैं, जल्दी करो. The total cost of a firm increased by rupees 450. Total cost of the firm is increased by 450 when the production increased from 12 units to 14 units. What is the marginal cost of the firm? Hmm. Total cost is increased by 450. Additional total cost is 450 because of two additional units. 12 say 14 units produce हुए. So because you produce two extra units, your total cost is changed by 450. Your total cost is changed by 450. So can I say 450 divided by 2? Answer is 225. Answer is D, 225. Answer is D, 225. Next. Find the average cost and average variable cost if the entire output is sold at rupees 60 per unit from the following. Average cost and average variable cost दोनों है. Wages 20,000, raw material 60,000, interest 6,000, fuel consumption 10,000 and rent 4,000. They have given you some types of expenses. You have to find out average cost and average variable cost. Is some information missing?
I didn't get you. लोगों, have they given you the total output? How can you find out if the total output is not given? कोई पिंग करेगा? There are some students who has given me the answer, but I think they have not given you total output. Yes, वही मैं बोल रहा हूँ. तो इन लोगों का आंसर कैसे आया? जिनका आंसर आया, आई डोंट नो हाउ दे गॉट द आंसर, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आउटपुट इज मिसिंग, बट टोटल मैं बोलता हूँ आपको, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट में रॉ वेजेस आएगा 20,000, वेजेस आएगा 20,000, उसके बाद रॉ मटेरियल आएगा 60,000, इंटरेस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट, फ्यूल कंजम्पशन इज अ वेरिएबल 10,000, rent is a fixed cost, so 90,000 is your 90,000 is your total variable cost. एंड अगर आप टोटल फीस कॉस्ट देखते हो 6,000 प्लस रेंट फीस कॉस्ट, 90,000 वेरिएबल कॉस्ट, 90,000 वेरिएबल कॉस्ट एंड 10,000 total fees cost. Total fixed cost is 10,000, so total cost is 1 lakh. Total cost is 1 lakh. Total cost 1 lakh है. If you can see my screen, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Your total variable cost is 90. Your total fixed cost is 10. Therefore, your total cost is 1 lakh. If you divide this by same amount, the ratio should be same. Ratio should be same ना. तो आंसर में देखो, A cannot be your answer because आपको क्या पूछा है? एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल. If you divide by the same output, suppose you divide by 1,000, ऐसे पकड़ के चलो, इसका आंसर रहेगा 90 और इसका आंसर रहेगा 100. रेशियो विल बी 9:10. पहले क्या पूछा उन्होंने? एवरेज कॉस्ट पूछा है ना. अच्छा, तो रेशियो ऑफ द एवरेज कॉस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट विल बी 100:90 या 10:9. ऐसे कोई आंसर है क्या 10:9 वाला? 10:9. बी विल बी द आंसर. देखो, आई नो दे हैव नॉट गिवन यू आउटपुट, they have not given you output is missing. However you can identify the answer. कैसे? राइट, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 10,000. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 90. टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 1 लाख. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 10:9. इसी रेशियो में आपका 10:9 में ही आपका वो आंसर होना चाहिए. देयरफॉर 50 रुपीज 50 एंड रुपीज 45. अगर ऐसे है 50 है, मतलब लेट मी टेल द आउटपुट कितना रहेगा. आउटपुट रहेगा, लेट मी चेक, 90,000 डिवाइडेड बाय 45 और आउटपुट इज 2,000. आउटपुट इज 2,000. ठीक है. इवन इफ सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, स्टिल यू शुड बी इन पोजीशन टू फाइंड द आंसर. अगर कोई भी दो चीजों को सेम अमाउंट से डिवाइड करोगे तो उनका जो रेशियो वो आंसर में मेंटेन रहेगा ना. So what is my total fixed cost? Total cost is 1 lakh. What is my total variable cost? 90. अगर दोनों को सेम अमाउंट से डिवाइड करूंगा, सेम क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा, तो उनका जो रेशियो आंसर में भी रहेगा. उनका रेशियो 10:9 है. एंड अगर मैं आंसर चेक करता हूं, 10:9 वाला एक ही है, दैट इज बी. आगे नेक्स्ट. A firm's average fixed cost is rupees 40. AFC is 40 at 12 units of output. What will it be if 8 units are produced?
पहले तो योर आंसर शुड नॉट बी लेस, बिकॉज अगर आउटपुट कम रहेगा एएफसी ज्यादा रहती है, आउटपुट ज्यादा रहेगा तो एएफसी कम रहेगी. सो आप 12 आउटपुट से 8 आउटपुट पे जा रहे हो, यू आर डिक्रीजिंग द आउटपुट, एएफसी विल इंक्रीज. सो आंसर 40 या 40 के आगे होना चाहिए, 40 या 40 के आगे होना चाहिए. मेक इट फास्ट. ओके. सो दोज हु कैन नॉट अटेम्प्ट विद इन ए टाइम, मैं आपको आपके लिए वार्निंग दे रहा हूं कि पेपर कभी कवर नहीं होगा आपका, नहीं होगा पेपर कवर. सो देखो, AFC of AFC is rupees 40 when 12 units are produced. What is the total fixed cost? Total fixed cost is 40 multiplied by 12. 480 is my total fixed cost. 480 is my total fixed cost. Fixed cost remains, total fixed cost remains same for any level of output. AFC कम होती है, total fixed cost remains same. So whether you produce 12 units, you produce 8 units, you produce 10 units or 20 units, TFC will remain same. AFC चेंज होती रहती है. सो 480 8 यूनिट्स के भी टोटल फिक्स कॉस्ट 480 रहेगी डिवाइडेड बाय 8, 60 इज द आंसर. AFC of AFC of 8 units is 60. नेक्स्ट आगे. A firm is producing 5 units of the output. 5 units of output has AC, average cost of 150, and it pays rupees 200 to its fixed factors of production. What is average variable cost? ओके, ध्यान देना. 5 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट 150 है. सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स? 150 मल्टीप्लाई बाय 5. टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स इज 750. उसमें से 200 इज फिक्स्ड. 750 में से 200 फिक्स्ड है, मतलब 550 इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट 5 इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. 550 डिवाइडेड बाय 5, 110 इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, average variable cost is 110. What is the average cost of producing 20 units if total fixed cost is 5000 and average variable cost is 2? आपको एवरेज कॉस्ट ढूंढनी है 20 यूनिट्स की.
ओके, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पूछा है, एवरेज कॉस्ट पूछा है। सो पहले टोटल कॉस्ट ढूंढेंगे, टोटल कॉस्ट ढूंढेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इधर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट मिलेगी। दे हैव गिवन टोटल फिक्स कॉस्ट 5000 and they have given average variable 2, average variable cost 2, so 20 units की average variable cost 2 है, 20 multiplied by 2, total variable cost of 20 units is 40 plus 5000 total fixed cost, total cost is 5040 divided by 20, output 20, so 5040 divided by 20, my average cost is 252, answer is D, my answer is D. Next, the ATC, average total cost of producing 50 units is 250 and TFC is 1000. What is the AFC of producing 100 units? ATC of 50 units is 250. TFC is 1000. What is the AFC of producing 100 units? So they have asked you AFC, average fixed cost. It is total fixed cost divided by output. Question में total fixed cost is 1000. 1000 is the total fixed cost divided by 100. 1000 divided by 100 is 10. Answer is A. Answer is A. Next. Yes. When a bus with a sitting capacity of 50 passengers is carrying 40 passengers, 40 passengers are traveling. The cost of passenger ticket is 100. What will be the marginal cost of carrying one additional passenger? बस की कैपेसिटी 50 पैसेंजर्स की है, अभी फिलहाल 40 पैसेंजर्स बैठे हैं, एक का टिकट है 100 रुपीज। अगर 41st बंदा आता है तो योर कॉस्ट विल चेंज बाय हाउ मच, मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट कितनी रहेगी 41st बंदे की? रियली गुड क्वेश्चन। आंसर इज जीरो, आंसर इज जीरो, बिकॉज जो बस कंपनी है उस उस बस में अगर उन्होंने एक बंदा एक्स्ट्रा बिठा भी दिया तो भी उनका कॉस्ट कुछ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर कॉस्ट विल नॉट चेंज अप टू 50 पैसेंजर्स, देयर कॉस्ट विल रिमेन सेम, टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम बिकॉज कैपेसिटी 50 यूनिट्स की।
50 पैसेंजर्स की. सपोज एक क्लास चल रहा है, क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं एंड क्लास की कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स की है. एडिशनल एडमिशन देने में क्लास का कोई नुकसान नहीं है, मिलेगा तो रेवेन्यू मिलेगा, कॉस्ट कुछ नहीं लगेगी. समझ में आ रहा है? आई मीन किसी को एक आधे को फ्री में सिखा के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कॉस्ट उतनी रहने वाली है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इन दिस केस 40 पैसेंजर से 50 पैसेंजर तक कॉस्ट विल रिमेन सेम. सो देयर इज नो एडिशनल बर्डन ऑन द कंपनी. रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा. 100 रुपीज पैसेंजर से कलेक्ट करेंगे, दैट इज नॉट कॉस्ट, दैट इज अ गेन, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट वो 41st बंदा आने से कॉस्ट विल नॉट चेंज. आंसर इज 0. नेक्स्ट, मैक्सिमम ऑफ देम हैज गॉन रॉन्ग. प्रॉपर फंडामेंटल क्वेश्चन रहता है ना तो नहीं होता है. Electricity charges are increased for a commercial use from rupees 3 per unit to rupees 5 per unit. This would affect. Okay. Electricity charges are variable cost. Electricity charges are variable cost. If the variable, it is a variable cost या semi variable cost. बेसिक तो सेम रहेगा ना, बेसिक तो सेम रहेगा. अगर पहले जितनी यूनिट्स कंज्यूम करते थे उस मल्टीप्लाई बाय 3 वाज योर बिल. नाउ जितने यूनिट्स कंज्यूम करोगे मल्टीप्लाई बाय 5 will be your bill. Basic charges remain same. What is the electricity bill? Basic charges plus charges as per consumption. Basic charges have not changed. The charges of the consumption have changed. So suppose basic charge is 100 rupees. So 100 तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ है. वेरिएबल चार्ज चेंज हुआ है. यूनिट्स कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय 3 होता था पहले. नाउ इट इज यूनिट्स कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय 5. So variable cost, it will change only variable cost. Answer is B. It will change only and only variable cost. Then the following is the marginal cost schedule. They have given you marginal cost. Oh, I will read it out for you. The average cost of production of the 4 units output is 1, 2, 3, 4. वो यहाँ पे स्पेस बराबर लेता नहीं है. I tried my best but हुआ नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5 and marginal cost is 6, 5, 4, 5, 7. ऐसे 5 आउटपुट्स एंड 5 आउटपुट्स की मार्जिनल कॉस्ट उतना थोड़ा एडजस्ट करना.
When output is 1, marginal cost is 6. When output is 2, marginal cost is 5. When output is 3, marginal cost is 4. When output is 4, marginal cost is 5. And when output is 5, marginal cost is 7. Find the average cost of production of the 4 units of the output. Average cost of production of 4 units of output. Okay, try to understand. You have to find out, they have given you MC, marginal cost, and they have asked you to find out average cost. If you know the total cost divided by output is the average cost. So how to find out total cost using marginal cost? Addition of marginal cost is the total cost. Summation of margin is the total. So हमें 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट चाहिए. तो MC of 1 plus MC of 2 plus MC of 3 plus MC of 4 is TC of 4. ले लो 6 plus 5 plus 4, 6 plus 5 plus 4 plus 5. 20 is your total cost of 4 units divided by 4. Answer is 20. Answer is 20. ठीक है, आगे answer is 20. MC of 1 6 plus MC of 2 5 plus MC of 3 4 plus MC of 4 5. अगर इनकी टोटल है तो it is 20. Summation of MC4 मतलब total cost of 4 units is 20 divided by 4. Average cost of 4 units is 5. Then next, if the total cost of production of good X is 1,25,000, out of which its implicit cost is 35,000. Implicit cost is 35,000 and normal profit is 25,000. What will be the explicit cost? Total cost, that is economic cost, is 1,25,000. Out of it, implicit cost is 35. Normal profit is 25. What will be the explicit cost, accounting cost of good X? Implicit is opportunity cost. Explicit is accounting cost. चाहे तो लिख लेना है, economic cost also includes normal profit. Economic cost also includes normal profit. और जिनको नहीं समझ में आता है वो लिख लेना, economic cost is equal to, economic cost is equal to, actually normal profit is a part of implicit cost. Normal profit is a part of implicit cost and implicit cost is a part of economic cost. इसलिए मैंने बोला economic cost includes normal profit. So चाहिए तो ऐसे लिखो, in economic cost is equal to accounting cost plus opportunity cost. Accounting cost plus opportunity cost, that is
explicit cost plus implicit cost. And implicit cost also includes नॉर्मल कॉस्ट. मतलब आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए, राइट? अकाउंटिंग इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू explicit cost plus implicit cost plus even normal profit if there is a normal profit. So I will say, ठीक है, so 1,25,000 is the total cost minus, which is equal to 1,25,000 economic cost is equal to explicit cost x, implicit cost given 35,000. Even normal profit should be also considered, which are 25,000. Therefore, x is equal to 60. Let me check. 35 plus 25, 60 minus, अच्छा 65 आ रहा है. So normal profit is a part of economic cost. ऐसे बोल के चलो. If they have given you normal profit separately, so right, you should also consider that for the purpose of calculation of economic cost. ठीक है? So it is accounting cost plus implicit cost plus normal profit separately given. एक्चुअली इसका ही पार्ट होना चाहिए. हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट 70,000 बोलनी चाहिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट 70,000 बोलनी चाहिए, बट उन्होंने अलग से करके दिया है. बिकॉज द प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू द ओनर शुड आल्सो बी इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट ही हैज फॉरगॉन. ठीक है? सो आंसर इज 65,000. गुड क्वेश्चन. देन ले लो. व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज फ्रॉम 40 यूनिट्स टू 55 यूनिट्स, total cost increase from 2,500 to 3,215. MC is what is MC? Change in the total cost divided by change in the output. When output was 40, total cost was 2,500. When output increased by 15, 55 हो गया, total cost increased to 3,250. So 3,250 minus 2,500. Additional cost of producing additional unit of 15 is 750. To produce additional 15 units, 15 units, 15 units, you are supposed to incur 750 additional cost. 750 divided by 15. Answer is 50. Answer is B. Answer is B. 9. The vertical gap between AC and AVC curve as the output increases, decreases, remains constant, none of the above. 1 minute. 1 minute भी बहुत हो गया. The gap between AC and AVC as output increases,
सो AC एंड AVC मैंने बोला रिलेशनशिप टाइप होनी चाहिए, द डिस्टेंस शुड डिक्रीज. सो AC एंड AVC का गैप डिक्रीज होगा बिकॉज गैप बिटवीन AC एंड AVC इज AFC, राइट? वो AFC जैसे होता है एंड देयरफॉर, ठीक है, ठीक है, AC एंड AVC रिलेशनशिप जैसे हो, पास आनी चाहिए. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज AFC एंड AFC डिक्रीज होती तो डिस्टेंस भी कम होना चाहिए. तो आंसर इज बी. ठीक है, और जिनका आंसर कुछ अलग है उनके नाम डिस्क्लोज करने चाहिए. आगे नेक्स्ट, सम एक दो ही बाकी है, कंप्लीट कर. मार्जिनल कॉस्ट वेरीज इनवर्सली विथ डैश डैश इन द शॉर्ट रन. मार्जिनल कॉस्ट वेरीज इनवर्सली, इट इज इनवर्स टू व्हाट? मैंने उस दिन लिख के दिया था आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट. ओके, जो ऐसे क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट नहीं दे सकते, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, दे डोंट अंडरस्टैंड. लेकिन ये क्वेश्चंस 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को. इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली, इफ यू स्टडी ऑन रूटीन बेसिस, डेली बेसिस, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए. सो मार्जिनल कॉस्ट इज अपोजिट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट. इट इज अपोजिट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है, देन नेक्स्ट, marginal cost is independent of 45 seconds just. Marginal cost is independent of fixed cost. Because marginal cost is additional cost and fixed cost does not change. इसलिए marginal cost is independent of fixed cost. ठीक है, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया है, आई डोंट नो, गॉड ओनली नोज. और जिन्होंने आउटपुट दिया है, अरे आउटपुट चेंज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट चेंज होती है. हाउ कैन इट बी इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट? ठीक है, नेक्स्ट, consider the following statement and point the correct one. You have 1 minute to decide. 38 सेकंड हो चुके हैं. So it requires, right?
स्पीड में पढ़ना भी आना चाहिए, उसको समझना भी है, उसको सॉल्व भी करना है. So it answer is when MC is rising, AC is decreasing, or when MC is below AC, AC is decreasing. When MC is above AC, AC is increasing. MC cuts the AC at its minimum point. Answer is C. Answer is C. Then the last. Actual में variable cost is function of both time and output. It's not just the output, it also changes as the time spends. So answer should be both time and output. Fixed cost is a function of only and only time. Fixed cost is a function of only and only time. Variable cost is a function of both time and output. Therefore answer is C. ठीक है? Done. So you should understand, practice requires. Obviously practice is must. Then it's a function of both. It is a function. I don't know क्या answer है. It is both time as well as output. Variable cost is a function of time as well as output. ठीक है? Now come to the long run cost curve. Again one important part, long run cost curve. Long run cost curves. ना? Long run cost curves. LAC. Long run cost curve. Long run cost curve. Long run average cost curve. LAC. Long run average cost. ठीक है? Also called as planning curve. लॉन्ग रन में हम प्लान करते हैं. Also called as envelope curve. क्यों ये देखेंगे. Try to understand. मैं पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान देना. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. if you are gonna produce in the future, पहले आप डिमांड फोरकास्टिंग करोगे. इफ यू रिमेंबर डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स थे. इफ यू रिमेंबर
demand forecasting, right? Bias opinion, survey of bias opinion, Salesforce method, expert opinion method, statistical methods, बराबर, then barometric method and experience method, laboratory experiment method और consumer clinic, ऐसे 6 methods थे. याद होनी चाहिए आपको, एटलीस्ट नाम तो याद होनी चाहिए, कंटेंट बाद में याद आएगा फिर. So we do the demand forecasting using one or combination of those methods, and we forecast the demand for the long run, like coming 10 years, coming 15 years, coming 20 years, 30 years, like that. Reason is very simple, because we have to install the plant, we have to install the machineries, we have to take the strategic decisions, we have to hire the top management team. We will be entering, like spending a huge fixed cost, and once it is spent, it becomes sunk cost which cannot be recovered. If your decision goes wrong, it will become a loss, fixed cost will become loss. So the strategic decision is long-term decisions. Try to understand. Decision making करनी है for the future. So हम demand forecast करेंगे, and suppose we expect over 10 years we can achieve the demand of suppose 10 lakhs output. We can produce, right? We can sell 10 lakhs outputs over 10 years. हमारी demand 10 lakhs output की हो सकती है. तो obviously we should be in position to produce 10 lakh units in next 10 years. ऐसे होना नहीं चाहिए कि we have a less capacity to produce 10 lakhs units. We should have that much capacity to produce 10 lakhs units. So if you think in next 10 years you will require a capacity of a plant producing 10 lakhs units. So obviously today you will install that plant. भले आज वो utilize नहीं हो रहा है, but still you will install a plant having 10 lakhs capacity, and over 10 years you will, right, use it to its optimum maximum capacity, full capacity. By the end of the 10th year you will achieve that output level, you will sell that output level. So in the long run you plan, and in the short run you execute that plan. लॉन्ग रन में हम प्लान करते हैं, एंड शॉर्ट रन में हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं. लॉन्ग रन इज कॉल्ड एज अ प्लानिंग हॉरिजॉन, शॉर्ट रन इज कॉल्ड एज एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड. It is not possible कि at the end of the 10th year you can directly install 10 lakhs output. It is not that simple. It takes time. So पहले से ही हम प्लांट एक चूज करके रखेंगे कि 10 lakhs का आउटपुट रहेगा, एंड धीरे 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 हम उस प्लान को by employing more and more variable inputs, by buying more and more raw material, by employing more and more labor, because once I have taken decision of next 10 years, मैंने जब प्लान किया है next 10 years में मुझे इतना आउटपुट प्रोड्यूस करके सेल करना है, I have installed the capacity, मैंने वो capacity इंस्टॉल की है, I have already incurred the fixed cost which has now become the sunk cost. I need to produce more units, and for that purpose I enter into short run obviously, and then I will increase or decrease the output in the short run by changing the variable inputs and not the fixed inputs or the fixed capacity. So लॉन्ग रन में प्लानिंग की जाएगी, शॉर्ट रन में एग्जीक्यूशन होगा. लॉन्ग रन में हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने का प्लांट लगेगा, and accordingly we will prepare the, or we will install the plant, we will incur the fixed cost. It takes time to recover the fixed cost. Fixed cost generally do not get recovered in the 1 month or 2 months. It takes time, like 2 years, 3 years, 4 years down the line. Like Jio incurred a huge fixed cost when they enter into market. Obviously their target was like recovering maybe within 2 years, 3 years, 4 years down the line. What you have to recover first is the variable cost, day-to-day cost. When you have taken the decision is not for 1 day or 2 day or 1 month. The decision is for the long run. Try to understand मैं आपको क्या बोल रहा हूँ. So लॉन्ग रन में प्लानिंग की जाएगी, आउटपुट फोरकास्ट किया जाएगा, डिमांड फोरकास्ट की जाएगी,
टू मीट दैट डिमांड आउटपुट फोरकास्ट किया जाएगा। आउटपुट कितना चाहिए, वो आउटपुट के लिए मुझे कितने कैपेसिटी का प्लान चाहिए वो डिसाइड किया जाएगा। वो कैपेसिटी अचीव करने के लिए मुझे कितने लेबर, कितने रॉ मटेरियल, क्या सब चीजें वेरिएबल लगेगी, वो फोरकास्ट किया जाएगा। एंड विद दैट फोरकास्ट we will implement that output capacity, we will install that plant, and we will start using that plant, right? We will start increasing the variable inputs and we will start achieving that level of the output. It's simply ki suppose we are we are chasing team, hum cricket के case में the opponent has given us a target of suppose 350 runs in 50 overs. We know 350 हमें 50 overs में complete करना है, first over में वो complete नहीं हो सकता, right? If we score continuously, जो भी अपना required run rate रहेगा, अगर उसके हिसाब से हम करते रहेंगे, by the end of the 50th over we will achieve that target. Try to understand. So we know the target and हमें धीरे धीरे achieve करना है. It is not possible to achieve in the first over or first 5 overs that target. आपने long term की decision लिए, 350 runs is not joke. You have 15 overs to play. Try to understand. So वही मैं बोल रहा हूँ कि वो टारगेट धीरे धीरे अचीव किया जाएगा, शॉर्ट रन में अचीव किया जाएगा। लाइक फर्स्ट पावर प्ले विल बी द फर्स्ट शॉर्ट रन, फिर बीच में पावर प्ले नहीं रहेगा, फिर रिस्ट्रिक्शंस निकल जाएंगे, तो फिर रन रेट डिक्रीज हो जाएगा, फिर बैटिंग साइड हैज अ वन पावर प्ले दैट विल बी अनदर शॉर्ट रन, इन बिटवीन एक शॉर्ट रन हो गया, फर्स्ट पावर प्ले, फिर रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे, दैट विल बी अनदर पावर प्ले, थोड़ा लॉन्ग वो सॉरी दैट विल बी अनदर शॉर्ट रन, थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, then batting team has to choose one power play. I think एक फिर bowling को भी choose करना होता है. So these are the various short runs which makes your long run of 50 overs. And हम हमारा टारगेट को शॉर्ट रन में डिवाइड करेंगे, पहले 10 ओवर में इतना करेंगे, नेक्स्ट 20 ओवर में इतना करेंगे, नेक्स्ट 10 ओवर में इतना करेंगे, नेक्स्ट 10 ओवर में इतना करेंगे, लाइक दैट. सो जो टारगेट है हमारा, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं शॉर्ट रन्स में, एंड वी आर एक्चुअली making the runs in the short run and not in the long run. Try to understand. जब 50th over complete हो जाएगी and when we will right score 350 first run, जब हम score achieve करेंगे तो लगेगा कि सब कुछ achieve हो गया, everything has changed. So धीरे धीरे वो achieve किया जाएगा. तो try to understand. जब मैंने बोला कि the output, the demand for my product will be 10 lakhs in the after 10 years, 10 lakhs after 10 years. So it won't be achieved in the one day. It requires efforts from all the ends. Procurement department से, manufacturing department से, sales team से, management से, सबसे वो effort चाहिए तो जाके वो achieve होगा. Try to understand मैं आपको क्या बोल रहा हूँ. So जो हम long run में decide करने वाले उसको short run में execute करेंगे, ठीक है? And जब हम execute करेंगे तो हमने एक कैपेसिटी इंस्टॉल की होगी, एक कैपेसिटी हमने इंस्टॉल की होगी, एंड उस कैपेसिटी के हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे बाय चेंजिंग द वेरिएबल इनपुट. सो लॉन्ग रन में हम कैपेसिटी डिसाइड करते हैं, प्लांट साइज डिसाइड करते हैं. लॉन्ग रन में हम क्या डिसाइड करते हैं? प्लांट साइज, फिक्स कॉस्ट डिसाइड करते हैं, फिक्स फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, हम उनको इंस्टॉल करते हैं, एंड शॉर्ट रन में वो कैसे अचीव हो वो उस पे वर्क होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड. आई मीन एक बार हमने 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का प्लांट इंस्टॉल किया, नाउ आई कैन नॉट कम बैक, मैं नहीं पीछे आ सकता, मुझे उसको यूटिलाइज ही करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? अदरवाइज आई विल एंटर इनटू लॉसेस. सो धीरे 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 उस प्लांट को हम यूटिलाइज करेंगे. वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस 10 लाख यूनिट्स. Even my second target is the production should be at a lowest possible cost. कम से कम कॉस्ट में हो. खाली प्रोडक्शन करना है इसलिए प्रोडक्शन नहीं करना है. You should also try to achieve the efficiency. You should also try to achieve efficiency in the terms of cost. मतलब average cost should be the lowest possible average cost. There should be less wastage. There should be less idle resources. सबको adequate काम मिले, सबकी efficiency अच्छी रहे, एंड मेरी कॉस्ट सबसे कम रहे. एवरेज कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ वन यूनिट शुड बी लीस्ट.
सो अब मैं आपको बोलता हूं, सो लॉन्ग रन में हम प्लांट डिसाइड करते हैं, लॉन्ग रन में हम क्या डिसाइड करते हैं, प्लांट। ध्यान देना, माय एग्जांपल 1 लिख लेना एवरीवन। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट it is expected that demand will be for 1 lakh units in long run, and to produce it, producer has 3 plants available in the market. He, he producer has estimated that demand will be 1 lakh. Obviously, he will produce 1 lakh units. And to 1 लाख की कैपेसिटी के 3 प्लांट है मार्केट में, 1 लाख की कैपेसिटी के 3 प्लांट है. The average cost curves of 3 plants is given. Output, average cost per unit in rupees. ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, बिकॉज हम प्रोडक्शन शॉर्ट रन में करेंगे, इसलिए मैंने उसको बोला है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1. दिस इज प्लांट 1. प्लांट 1 की कॉस्ट कर, प्लांट 1 की कॉस्ट कर एसएससी 1. प्लांट 2 की cost curve is SSC2 short run average cost and is SSC3. So all the three plants can give you 10,000 unit cow, 1 lakh unit का output. All the three plants can give you 1 lakh unit output. Output 1 lakh. ठीक है, output is 1 lakh. ठीक है, my question is which plant is more, which plant should be, which plant should be installed. प्रोड्यूसर ने कौन सा प्लांट इंस्टॉल करना चाहिए, विच प्लांट शुड बी इंस्टॉल. Which plant should be installed is my question. You have to think over it. This is output of 1 lakh. This is output of 2 lakhs. This is output of 1 lakh 50. या मैं यहाँ पे 1 lakh 50 कहाँ पे दूसरी जगह इतना कुछ.
think over it, use your common sense, try to एनालाइज द थिंग. अगर कॉस्ट के टर्म्स में आप देख सकते हो तो देखो, हमें 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने हैं. व्हाट डू यू थिंक? Which plant, plant 1, plant 2 or plant 3, or plant having cost SSC1, plant having cost SSC2, or plant having cost SSC3? Use your common sense. If you have to produce 1 lakh units and your 3 plants which are given, average cost दी है उनकी, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने की एवरेज कॉस्ट दी है, तो आपको क्या लगता है कौन सा प्लांट आपके लिए सुटेबल है? I got some answers. करो. Yes. Answer. Okay. अच्छा शुभम, कैन यू टेल मी व्हाई इट इज SSC1? एक सेकंड, लेट मी अनम्यूट यू. व्हाई इट इज SSC1? व्हाई नॉट SSC2 और SSC3? ओके, यू डोंट हैव माइक, टेक मी द आंसर. सो पिंग करो मुझे आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, अब ध्यान देना. यू हैव टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट. मैं 1 लाख यूनिट उस प्लान पे प्रोड्यूस करूंगा जहां पे मेरी कॉस्ट सबसे कम हो. टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट आई हैव थ्री प्लान्स. मैं देखता हूं, सपोज आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन माई गिवन आउटपुट. मुझे ये आउटपुट चाहिए, ठीक है. आई कैन प्रोड्यूस दैट आउटपुट using SSC1 plant 1. I can also produce 1 lakh unit using plant 2. And if I extend plant 3, I can also produce using plant 3. If I try to extend it. Now, tell me, this is the average cost of plant 1. 1 लाख यूनिट की एवरेज कॉस्ट इतनी है. 1 लाख यूनिट्स अगर आप प्लांट 2 पे प्रोड्यूस करते हो
तो उसकी कॉस्ट इतनी है, एक यूनिट की कॉस्ट. एंड इफ यू प्रोड्यूस यूजिंग प्लांट 3, एवरेज कॉस्ट इतनी है. सपोज टेक दिस इज 2, this is 4 and this is 10. therefore मैंने कुछ भी लिया, एरिया जिनको समझ में लगता है उनके लिए मैंने वैल्यूज लिए. therefore total cost of producing total cost of producing 1 lakh units using SSC1. Plant having cost SSC1. Plant 1 having इसकी cost structure SSC1. 1 लाख मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट कितनी है प्लांट 1 पे. प्लांट 1 पे एवरेज कॉस्ट कितनी है 2 lakhs. You can produce 1 lakh units with 2 lakhs cost. Average cost is 2. Average total cost है वो. SSC2 if you use plant 2, your average cost 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करोगे बट 1 यूनिट की कॉस्ट रहेगी 4. 1 lakh multiply by 4 lakhs. So to produce 1 lakh unit, you have to incur 4 lakh rupees की total cost. That is variable plus fixed. And if you produce using SSC3, 1 lakh multiply by SSC3 की average cost कितनी 1 lakh के लिए is 10. So to produce the same output, 1 lakh, I have 3 options: plant 1, plant 2, plant 3. Plant 1 पे मेरी कॉस्ट रहेगी 2 lakhs, plant 2 पे मेरी कॉस्ट रहेगी 4 lakhs, and plant 3 पे मेरी कॉस्ट रहेगी 10 lakhs. Now tell me which is a better plant? Which is a better plant? What do you think now? ठीक है? Now which is a better plant? Because आपकी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने 2 लाख देके करना है, 4 लाख देके करना है, या 10 लाख देके 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है. एज ए प्रोड्यूसर विच इज बेटर? ऑब्वियसली वो वाला प्लांट जो आपकी एवरेज कॉस्ट कम रखेगा. यू कैन प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स यूजिंग 3 प्लांट्स. एग्जाम्पल, आपको यहां से पिंपरी चिंचवड़ जाना है, आप बस से जा सकते हो, आप लोकल से जा सकते हो, आप ऑटो करके जा सकते हो, तीनों से जा सकते हो, बट सबसे लोएस्ट कॉस्ट लोकल से रहेगी. एंड देयरफॉर पीपल प्रेफर टू ट्रैवल बाय लोकल. इवन लोकल से टाइम भी कम लगता है. मुझे ऐसे नहीं कि सर बहुत अर्जेंसी है तो मैं ऑटो से जाऊंगा. अर्जेंसी कुछ नहीं भाई, आपको 10 दिन में उधर जाना है. ऐसे तो कोई बोलेगा सर मैं चल के भी जाऊंगा. मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें 4 घंटे में पीसीएमसी पहुंचना है, पिंपरी स्टेशन चिंचवड़ स्टेशन जाना है 4 घंटे में. यू हैव सफिशिएंट टाइम. लॉन्ग रन है, 4 घंटे में इवनिंग तक आपको पीसीएमसी जाना है. और मैंने बोला आपके पास सारे ऑप्शंस है. लोकल से जाओ, बस पीएमटी से जाओ, या फिर आप ऑटो करके जाओ. ऑटो एक ऑप्शन है, या आप कार करके जाओ. 4 ऑप्शन दिए. यू नो योर टाइम. ऐसे नहीं कि आपके पास बहुत अर्जेंट है तो उसमें यू वोंट थिंक अबाउट द कॉस्ट, बट यू आर थिंकिंग ऑफ द लॉन्ग रन. सो यू नो इवनिंग तक उधर जाना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आप मिनिमम कॉस्ट सोचोगे. यू विल ट्रैवल बाय लोकल. लोकल में तो आप, मुझे लगता है 10 रुपए में पिंपरी चिंचवड़ में जाओगे. वही बस से जाते हो 30-40 रुपीज लगते हैं. अगर ऑटो से जाओगे 200 से 300 रुपए कम से कम लगेंगे. एंड अगर वही कार से जाते हो तो 500 रुपए लगेंगे. द सेम डिस्टेंस, योर सेम टाइम, इवनिंग तक जाना है, तो यू विल थिंक ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच विल कॉस्ट यू लेस. हम लॉन्ग रन की प्लानिंग कर रहे हैं, हम शॉर्ट रन की प्लानिंग नहीं. काम करेंगे शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में इवनिंग तक उधर जाना है. तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपने कौन सा सिलेक्ट करोगे? द ऑप्शन विच विल गिव यू लोएस्ट कॉस्ट. एंड आपको डेली प्रोड्यूस करना है, इसे एक बार करना है. आप बोलोगे सर मुझे एक ही बार जाना है, मैं
कार करके जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ डेली जाना है, 365 डेज जाना है, 10 साल जाना है, तो यू विल थिंक अगर 10 साल जाना है तो आप लोकल में भी पास निकालोगे, वो 9 रुपए से और कम में गिरेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ह्यूमन बिहेवियर है यार, दिस इज वेरी कॉमन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो टू प्रोड्यूस एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, हमने डिसाइड किया कि हमें 1 लाख प्रोड्यूस करना है ओवर 10 ईयर्स, लॉन्ग रन में 1 लाख प्रोड्यूस करना है. तो आज जब मैं उसके लिए तैयारी करूंगा, आज जो मैं प्लांट इंस्टॉल करूंगा, मेरे पास 3 प्लांट्स की राइट फिजिबल 3 प्लांट्स है, 1 2 3, हर प्लांट की कॉस्ट अलग अलग रहेगी. एक्चुअली SSC1 इज ए, आई विल से जो SSC1 जो कॉस्ट है, जिस प्लांट की कॉस्ट है, प्लांट 1 की कॉस्ट SSC1 शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 1, that is a lower capacity plant as compared to SSC2. SSC2 is a higher capacity plant. आप देखो उससे आप ज्यादा आउटपुट बना सकते हो, आगे तक है. SSC3 सबसे लार्जेस्ट प्लांट. एग्जांपल, अगर आपको 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना है ओवर 10 इयर्स, तो आप मुझे बोलो, आप थोड़ी 10 लाख का प्लान डालोगे. 10 लाख का प्लान डाल के आप अननेसेसरी योर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो, बिकॉज फीस कॉस्ट विल बी मोर, एवरेज फीस कॉस्ट विल बी आल्सो मोर. अगर आप यूज ही नहीं करने वाले हो तो क्यों इतना बड़ा प्लांट डालने का? पहले 1 लाख तो अचीव करो 10 साल में, फिर देखेंगे 10 लाख का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें वो प्लांट चूज करना है जहां पे मेरी एवरेज कॉस्ट मिनिमम रहे. सो आउट ऑफ SSC1, SSC2 and SSC3, the lowest possible cost is on SSC1, 2 lakhs 2 per unit और 2 lakhs total cost. मैं SSC2 पे भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बट आई हैव टू पे मोर. SSC3 पे भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ 1 लाख यूनिट्स, बट जनरली लोअर आउटपुट should be produced on lower plant, lower capacity plant, and larger output should be produced on larger capacity plant. मैं फिर से बोल रहा हूँ, lower output should be produced on lower capacity plant, larger output should be produced on larger capacity plant. अगर आप उल्टा करने लगते हो, लोअर आउटपुट हायर कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करने स्टार्ट करते हो, प्लांट्स विल बी अंडर यूटिलाइज्ड एंड योर कॉस्ट विल बी मोर, एवरेज कॉस्ट विल बी मोर. लार्जर आउटपुट लोअर कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हो, प्लांट्स विल बी ओवर यूटिलाइज्ड, योर एवरेज कॉस्ट विल बी मोर, इफिशिएंसी कम हो जाएगी. देयरफॉर एवरी आउटपुट के लिए कोई ना कोई मिनिमम कॉस्ट रहेगी. हर आउटपुट के लिए मिनिमम कॉस्ट तो रहेगी रहेगी. वो वाला हमें प्लान ढूंढना है, वो वाला हमें प्लान ढूंढना है. तो हम लॉन्ग रन में ये डिसाइड करेंगे, SSC1 वाला प्लांट ले लूं, SSC2 वाला प्लांट ले लूं और SSC3 वाला प्लांट ले लूं. आपने बोला सर, जिन्होंने SSC2 बोला, आई डोंट नो व्हाई दे सेड SSC2. SSC2 की कॉस्ट तो 4 लाख है, SSC1 पे तो काम हो रहा है 2 लाख में, वही काम हो रहा है. सो आई विल इंस्टॉल SSC2 प्लांट, आई विल इंस्टॉल SSC2 प्लांट, एंड एक बार मैंने वो इंस्टॉल कर दिया SSC1 प्लांट, आई विल वर्क ऑन दैट प्लांट. पहले मैं चूज करूंगा अमॉन्ग द वेरियस प्लांट्स, अमॉन्ग द वेरियस मशीन्स, मैं एक मशीन चूज करूंगा जो मेरी एवरेज कॉस्ट कम रखेगी फॉर ए गिवन एक्सपेक्टेड आउटपुट. एंड देन वंस आई डिसाइड द प्लांट, वंस आई डिसाइड द मशीन, आई विल इंस्टॉल इट एंड आई विल वर्क ऑन दैट मशीन इन द शॉर्ट रन. फिर आई डोंट हैव चॉइस. अगर आपने SSC2 इंस्टॉल किया, you have no choice to come back on SSC1. You have no choice to move on SSC3. It will take time. It will require additional cost. समझ में आ रहा है? So पहले ही प्लांट डिसाइड करते टाइम बी वेरी what I will say prompt और be very wise, समझ के प्लांट इंस्टॉल करना है. If in the same question I say which plant is most suitable to produce 1,40,000 units, my next question is which plant is to be installed to produce, ये डायग्राम निकाल के लेना जो मैंने निकाल के दी है. which plant to be installed to produce 1 lakh unit, 1,40,000, sorry, yeah, 1,40,000. I will continue till 1 बजे तक मैक्स टू मैक्स कंटिन्यू करूंगा, मैक्स बोल रहा हूं, उसके पहले हो जाएगा. सो एक कंसेप्ट पे आकर रुकूंगा तो कल हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट खत्म हो जाएगी.
which plant should be installed to produce 1,40,000 units? अब you can use your logic. Your SSC1 का plant 1 having cost SSC1, plant 2 having cost SSC2 और plant having cost SSC3. यहाँ पे SSC1 था. Ping me the answer. सोचो मुझे 1,40,000 प्रोड्यूस करना है तो which plant is more suitable? चलो जल्दी करो, सोचने वाली बात है. आपके सामने डायग्राम है, 1,40,000 आउटपुट देखो, कौन से प्लांट पे आपकी कॉस्ट सबसे कम रहेगी? एवरेज कॉस्ट कम वाला ढूंढो. एंड आपको मैं डिसीजन लेना सिखा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोलेगा आपको ये सब चीजें. नो, यू हैव टू टेक द डिसीजन. अब हम बोल रहे कि अगर नहीं हमें 1,40,000 की डिमांड रहेगी तो हम 1,40,000 प्रोड्यूस करने वाले, तो कौन सा प्लांट इंस्टॉल करना चाहिए? SSC1, SSC2 और SSC3. न्यू डिसीजन है. परफेक्ट. SSC2. व्हाई? जहां पे हमें आउटपुट चाहिए वहां पे कॉस्ट ढूंढो ना, एवरेज कॉस्ट ढूंढो. तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया. आई कैन प्रोड्यूस 1,40,000 यूजिंग SSC1 जिसकी कॉस्ट खाली इतनी होगी, एवरेज कॉस्ट. 1,40,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस इवन एट दैट कॉस्ट. मल्टीप्लाई 1,40,000 मल्टीप्लाई वो करोगे से वो सेगमेंट की लेंथ, आपको टोटल कॉस्ट मिलेगी. वही आप इतना डाल के भी प्रोड्यूस कर सकते हो SSC2 यूज करके. एंड थर्ड SSC3. मुझे बोलो एक यूनिट की कॉस्ट, इफ यू टू प्रोड्यूस 1,40,000, उसमें से एक कोई भी यूनिट उठाओ, उसकी एवरेज कॉस्ट, उसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम कहां पे? SSC2 पे है, SSC1 पे या SSC3 पे? राइट, बोलो जल्दी. सबसे कम कॉस्ट कहां पे? SSC2. एंड देयरफॉर द आंसर इज SSC2. आंसर इज SSC2. एंड अगर यही क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करता हूं, which plant should be installed to produce 2 lakhs input? 2 lakh inputs. 2 लाख के लिए कौन सा प्लांट इज गुड वन 2 लाख इनपुट्स के लिए? चलो करो टाइप. फॉर 2 लाख यूनिट्स विच प्लांट इज सुटेबल? मेक इट फास्ट, जल्दी करो. 2 लाख आउटपुट के लिए कौन सा प्लांट सुटेबल है? सो गए क्या बाकी सब? टू प्रोड्यूस 2 लाख आउटपुट, मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं. 2 लाख के लिए कॉस्ट ढूंढते हैं. SSC3 की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इतनी है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय दैट इज द टोटल कॉस्ट. जितनी कम एवरेज कॉस्ट उतनी कम टोटल कॉस्ट रहेगी फॉर ए सेम आउटपुट. सेम आउटपुट के लिए जितनी कम एवरेज कॉस्ट मतलब उतनी कम टोटल कॉस्ट. If you produce using SSC2, your total cost will be more than SSC3 की cost, because average cost of SSC3 is less as compared to SSC2. And again, SSC1 की तो cost बहुत ज्यादा रहेगी. Are you getting my point? So which is the better? SSC3. लिख लेना SSC3. Perfect. SSC3. SSC3. So what you understood? To produce 1 lakh unit, SSC1 is better. To produce 1,40,000 units, SSC2 is better. To produce 2 lakhs units, SSC3 is better. Means what?
इफ यू ट्राई टू प्रोड्यूस, अरे इधर देखो ना, कहाँ पे कॉस्ट कम है, ये वाली कॉस्ट सबसे कम है ना एसएससी 2 की, इसलिए 1,40,000 एसएससी 2। एवरेज कॉस्ट ढूंढो ना, नीचे देखो ना, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। सो कैन आई से इफ आई ट्राई टू प्रोड्यूस, if I try to produce lower output 1 lakh on highest plant is 3, highest capacity का plant is 3, अगर मैं plant 3 पे, अगर मैं plant 3 पे लोएस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता हूं तो मेरी कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 लाख है। क्यों? बिकॉज कैपेसिटी तो बहुत हेवी है, आउटपुट बहुत कम है, प्लांट विल बी अंडर यूटिलाइज्ड, फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, योर एवरेज कॉस्ट विल बी वेरी हाई, या योर टोटल कॉस्ट विल बी वेरी हाई। देयरफॉर डू नॉट प्रोड्यूस लोअर आउटपुट ऑन प्लांट हैविंग वेरी लार्ज कैपेसिटी। उल्टा देखते हैं, अगर हम लार्जर आउटपुट 2 लाख का आउटपुट लोअर कैपेसिटी के प्लांट पे प्रोड्यूस करते हैं, लाइक एसएससी 1 पे 2 लाख आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, स्टिल यू कैन फाइंड द कॉस्ट इज वेरी हाई। क्यों? बिकॉज प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख की है और आपको 2 लाख आउटपुट प्रोड्यूस करना है। यूर प्लांट विल बी ओवर यूटिलाइज्ड। समझ में आ रहा है? देयर विल बी मेनी फैक्टर्स विच विल बी आइडल, जिनको हम सैलरी दे रहे हैं बट वो काम नहीं कर रहे, वेस्टेज हो रहा होगा, right? That will increase your cost. Therefore, do not produce in this example 1 lakh output on SSC 3 और SSC 2। 1 lakh output SSC 2 या SSC 3 पे नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनकी कैपेसिटी ज्यादा है देन द रिक्वायर्ड। 1,40,000 का आउटपुट हमने SSC 1 पे भी नहीं करना चाहिए, SSC 2 3 पे भी नहीं करना चाहिए। SSC 1 पे करोगे तो लोअर कैपेसिटी का प्लांट टेक कॉस्ट विल इंक्रीज, SSC 3 पे जाते हो तो हायर कैपेसिटी का प्लांट टेक कॉस्ट विल इंक्रीज। अगर 2 लाख आउटपुट हम एसएससी 1 या एसएससी 2 पे प्रोड्यूस करते हैं, कॉस्ट विल बी मोर बिकॉज उनकी कैपेसिटी कम है, उसके लिए एसएससी 3 इज बेटर। सो वन पॉइंट दैट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस डिस्कशन इज प्रोड्यूसर इन द लॉन्ग रन विल डिसाइड हिज आउटपुट, ही विल डिमांड फोरकास्ट करेगा, आउटपुट डिसाइड करेगा, एंड वो आउटपुट के लिए वो प्लान ढूंढेगा, उस आउटपुट के लिए वो प्लान ढूंढेगा जहां जो उसको लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट देगा, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट देगा, and he will work on that plant. Doing that activity, we understood that lower output should not be produced on a plants having very high capacity. At the same time, higher output should not be produced on a plant having lower capacity, because in both the cases cost increases. Every output has its own plant. Every output like 1 lakh, 1,40,000, 2 lakhs, every output can be produced at a lowest possible cost. हर आउटपुट की खुद की लोएस्ट कॉस्ट हो सकती है, हर आउटपुट की अपनी अपनी कॉस्ट हो सकती है। ऑब्वियसली हर 1 लाख की कॉस्ट अलग रहेगी, 1,40,000 की कॉस्ट अलग रहेगी, 2 लाख की कॉस्ट अलग रहेगी। दैट इज बट ऑब्वियस बिकॉज आउटपुट चेंजेस, कॉस्ट विल चेंज, बट उसकी खुद की कम कॉस्ट हो सकती है। अगर मुझे 1 लाख आउटपुट करना है, उसकी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट होगी, वो वाला मुझे ढूंढना है। 1,40,000 की खुद की कुछ अलग लोएस्ट कॉस्ट हो सकती है, 2 लाख की खुद की अलग कॉस्ट हो सकती है। ठीक है? नाउ आई विल टेक द सेम एग्जांपल एंड आई विल आस्क अनदर क्वेश्चंस। SSC 1, SSC 2, SSC 3, this is average cost per unit, that is AFC plus ABC दोनों आ गए इसमें, ठीक है, पर यूनिट। दिस इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड।
I have given you three curves, three plants, तीन plants दिए मैंने तीन plants दिए and तीन plants की cost curves दिए, उनकी cost curve, and I have given you 7 outputs, output level OQ1 to OQ7. और मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं चाहिए तो, ये आउटपुट इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, OQ6 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ SA2 SSA SSC2 and 3. ठीक है, नाउ यू हैव टू हेल्प मी, OQ1 कौन से प्लांट पे प्रोड्यूस करना चाहिए, प्लांट टू बी चूजन. तो डायग्राम निकालो आपके नोटबुक में एंड फिर ये लिखो. यस एवरीवन. You can always extend the curves like this, you can extend it like this, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो आगे तक, यू शेप्ड है ना. इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड लाइक दिस, ये आपके दिमाग में होना चाहिए. बट एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं. सो यू हैव टू टेल मी, ठीक है, अगर मुझे OQ1 आउटपुट प्रोड्यूस करना है, विच प्लांट इज मोस्ट सुटेबल, एवरीवन. चलो OQ1 का बोलो मुझे, OQ1. चलो टाइप करो यार, उतना समझ में आना चाहिए बच्चों को. OQ1 आउटपुट पे परपेंडिकुलर डालो और देखो कि कहां पे मेरी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है. हमेशा डालेंगे, वो आपको दिखना चाहिए परपेंडिकुलर. जल्दी. OQ1 देखो तो OQ1 का परपेंडिकुलर देखो एवरीवन. You can produce OQ1 using SSC1 at the same time SSC2. कॉस्ट जितनी कम उतना अच्छा, रेवेन्यू जितना ऊपर उतना अच्छा. कॉस्ट नीचे होनी चाहिए, रेवेन्यू ऊपर होना चाहिए. हम रेवेन्यू की बात कर ही नहीं रहे. मुझे 10 साल में OQ1 आउटपुट अचीव करना है और मेरे पास 3 प्लांट्स अवेलेबल है, तो विच प्लांट विल गिव मी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, द प्लांट which will, right, the plant which have, right, at that output lowest average cost. तो which is better, मुझे बोलो. SSC1. OQ2 का बोलो, OQ2 के लिए कौन सा बेटर है, OQ2 कहां पे, यहाँ पे. OQ2 के लिए कौन सा बेटर है, चलो जल्दी. अब मुझे चाहिए OQ2 के लिए. There can be only one plant. एक आउटपुट एक प्लांट पे बन सकता है, 2 प्लांट पे नहीं. ठीक है, बन सकता है, लेकिन हमें एक ही ऐसा प्लांट चाहिए जहां पे कॉस्ट कम रहेगी. एक ही प्लांट रहेगा जो कॉस्ट कम देगा. OQ2 चलो परपेंडिकुलर डालते हैं. I can produce using SSC1. I can produce using SSC1. I can also produce using SSC2.
इवन ओक्यू आउटपुट के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एंड इवन SA3 अगर मैं उसको ऊपर तक खींचता हूं तो इवन आई कैन प्रोड्यूस यूजिंग SA3, बट लोएस्ट कॉस्ट कहां पे रहेगी? आउटपुट सेम, मुझे कॉस्ट कम चाहिए तो लोएस्ट एवरेज कॉस्ट चाहिए, तो कहां पे प्रोड्यूस करना चाहिए? आई मीन शुड आई यूज SSC1 और SSC2 और SSC3? SSC3 तो नहीं, कॉस्ट कितनी हो जाएगी देखो ना. सो SSC1 है SSC2, व्हाट यू थिंक? यू शुड यूज स्टील प्लांट 1 और SSC1, प्लांट हैविंग कॉस्ट कर SSC1. ठीक है, आगे OQ3 होल्ड पे रखो, OQ4 पे, OQ5 देखो, OQ4 बोलो, OQ4 3 रहने दो होल्ड पे, 4 बोलो, 4 एंड 5, 4 एंड 5, पहले 4 बोलो, सबसे पहले 4 प्लीज. मैं प्लीज क्यों बोल रहा हूं तुम लोग? तुम्हें तो आंसर देना है. आइश, जिस आउटपुट पे चाहिए वहां की कॉस्ट ढूंढनी होगी. कॉस्ट y एक्सिस है ना, कॉस्ट y एक्सिस है, आउटपुट x एक्सिस है, तो हमें परपेंडिकुलर डालना होगा. I can produce OQ4 output using SSC2, उसमें मेरी कॉस्ट इतनी रहेगी पर यूनिट. सो OQ4 multiply by that much, or I can also produce using SSC1 only. SSC1 को ही प्रोड्यूस करके कर सकता हूं, but my cost will be per unit this much. Obviously, SSC2 की प्लांट 2 की कॉस्ट कम रहेगी than the plant 1, and even plant 3 से भी मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, बट उसमें your cost is very high. एवरेज कॉस्ट ज्यादा मतलब टोटल कॉस्ट भी ज्यादा, एवरेज कॉस्ट कम मतलब टोटल कॉस्ट भी कम फॉर सेम आउटपुट. फॉर सेम आउटपुट, आउटपुट सेम ही है. सो आप मुझे बोलो बिटवीन द थ्री ऑप्शंस SSC1, SSC2 एंड SSC3, आई विल गो फॉर SSC2. OQ4 हो गया. अच्छा, OQ4 के सामने लिखना है वो. OQ5 आउटपुट बोलो, OQ5 आउटपुट. चलो वैसे ही सोचना है, विच प्लांट इज बेटर फॉर OQ5? हाँ, गुड. हाँ, अभी बच्चे बराबर आंसर देने लगे. ठीक है. सो फॉर दैट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट. SSC1 की एवरेज कॉस्ट इतनी होगी, SSC2 की, SSC3 की. एरिया ढूंढो ना, फिर ज्यादा कॉस्ट कहां पे रहेगी? SSC2 पे कम कॉस्ट रहेगी एज कंपेयर टू SSC3. इवन SSC2 1 पे भी मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, उसमें इतनी कॉस्ट रहेगी, उसमें इतनी कॉस्ट रहेगी पर यूनिट. समझ में आ रहा है? कॉस्ट पर एक यूनिट की कॉस्ट ज्यादा है, क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो रे? फिर अगर वो वाला प्लान चूज करो जहां पे उसकी कॉस्ट कम रहेगी एक यूनिट की. सो विच इज बेटर? अगेन SSC1, SSC2. OQ6 रहने दो, इंटरसेक्शन का रहने दो, मुझे OQ7 बोलो. OQ7, व्हाट यू थिंक? OQ7, OQ7 चलो, OQ7. I'm building what? The concept. I'm building the concept. अच्छा, OQ4 के लिए क्या बेटर है? SSC3 बेटर है, बिकॉज OQ7 अगर प्रोड्यूस करने जाते हो, you can find cost per unit cost is lowest if I use SSC3. ये SSC1 की तो बहुत ज्यादा हो जाएगी. So lower capacity plants should not be used for the higher production. ठीक है. So SSC7 के लिए SSC3, OQ7 के लिए SSC3. ठीक है. अब देखते हैं, you have to help me.
OQ3 कौन से प्लांट पे प्रोड्यूस करना चाहिए? OQ3 कौन से प्लांट पे प्रोड्यूस करना चाहिए? कहां पे OQ3 प्रोड्यूस करने की मेरी लोएस्ट कॉस्ट हो सकती है? व्हाट यू थिंक? OQ3 चाहिए इंटरसेक्शन वाला। देखो, यू कैनॉट प्रोड्यूस बोथ, सॉरी, यू कैनॉट बाय बोथ द प्लांट्स। उसमें से भी आपको एक चूज करना है। आप बोलोगे सर SSC1 SSC2 दोनों पे कॉस्ट सेम है, तो SSC1 भी चलेगा, SSC2 भी चलेगा, बट मैं आपको बोल रहा हूं दोनों में से मुझे एक चाहिए। नाउ मेक द चॉइस। अब चॉइस मेकिंग आ गई। पहले बहुत क्लियर कट था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, ओके, आप बोलोगे सर SSC1 और SSC2, बट मैं आपको बोल रहा हूं आपको एक ही, ऑब्वियसली एक ही प्लांट लेना है ना। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि SSC1 और SSC2 एंड यू आर ए टॉप मैनेजमेंट, आपको डिसाइड करना है SSC1 लेना है SSC2 लेना है। अब सोचो, थोड़ा सोचो कि आप SSC1 पे प्रोड्यूस करोगे SSC2 पे प्रोड्यूस करोगे, व्हाट यू थिंक? You expect your demand will be OQ3 over a period of time. Will you go from SSC1 or SSC2? You must use your brain. If you require, you can take the help of the production function. You can take the help of overutilization, underutilization. आप उनको भी समझ के आप कर सकते हो। आपका बजट 100 लाख का है, आपको घर लेना है, फ्लैट लेना है, 100 लाख का बजट है। एक स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, बट 1 BHK 100 लाख में मिल रहा है। एंड दूसरी स्कीम है, एरिया सेम है, सब है, उसमें 2 BHK फ्लैट्स 100 लाख में मिलता है। आप क्या सोचोगे, क्या लोगे आप? कॉस्ट सेम है, एरिया भी सेम है, बट एक में 2 BHK करके दिया है, उसमें एक 1 BHK है। 1 BHK विथ 1 टॉयलेट, 2 BHK विथ द 2 टॉयलेट्स एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे, कौन सा फ्लैट लोगे? 2 BHK वाला लोगे, 1 BHK वाला लोगे? व्हाट यू थिंक? मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट सेम है, कॉस्ट सेम है, राइट। आप 1 BHK भी ले सकते हो, 2 BHK भी ले सकते हो, पैसा सेम ही देना है। तो विच विल यू गो फॉर? 2 BHK। व्हाई? बिकॉज यू थिंक कि 2 BHK में हम कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? अब बोलोगे सर एरिया सेम है, बट 2 BHK में 2 फैमिलीज रह सकती हैं। 2 BHK लोग क्यों 2 BHK जाते हैं फिर 1 BHK से, अगर सेम प्राइस पे 2 टॉयलेट्स हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1 BHK में एक टॉयलेट रहेगा, 2 BHK में 2 टॉयलेट्स रहेंगे, एक कॉमन रहेगा, एक मास्टर बेड का रहेगा। सो ऑन सिमिलर बेसिस अब यहाँ पे सोचो, मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, मैं OQ3 2 प्लांट्स पे प्रोड्यूस कर सकता हूँ, SSC1 पे भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, बिकॉज जितनी SSC1 की कॉस्ट है उतनी कॉस्ट SSC2 की है। हाउएवर, बाय कंसीडरिंग द फ्यूचर, बाय कंसीडरिंग द फ्यूचर, देखो अब ध्यान देना, SSC1, सपोज दिस इज SSC1, अब SSC1 का ये लोएस्ट पॉइंट है, SSC1 का लोएस्ट पॉइंट है, एंड दिस इज SSC2, इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे, और आप इस इंटरसेक्शन पे हो। आप SSC1 के राइजिंग पोर्शन पे हो, राइजिंग पोर्शन पे हो, और मैंने कहां पे लिख के दिया था, इफ यू रिमेंबर, अगर आप राइजिंग पोर्शन पे काम कर रहे हो, मींस उस प्लान को आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हो। एंड अगर आप डाउनवर्ड पोर्शन पे काम कर रहे हो किसी प्लान के, एसएस शॉर्ट कर एवरेज कॉस्ट के शॉर्ट नीचे गिरते हुए पोर्शन पे काम कर रहे हो, आप अंडर यूटिलाइज्ड हो। सो कैन आई से, इस डायग्राम में ये वाला देखो, आपको ये वाला प्रोड्यूस करना है, राइट, ये वाला आउटपुट प्रोड्यूस करना है। SSC1 के आप अपवर्ड पोर्शन पे हो, मींस एट दिस आउट टू प्रोड्यूस दिस मच आउटपुट यू आर ओवर यूटिलाइजिंग SSC1, आप उसको खींच खींच के उधर लेके जा रहे हो। एंड अगर आप SSC2 से प्रोड्यूस करोगे,
you are producing at a downward sloping portion of SSC2. SSC2 is underutilized. Overutilized SSC1, underutilized SSC2. By considering the future, we can also expect increase in demand. पैसा सेम देना है बट कैपेसिटी ज्यादा मिल रही है, I will go for SSC2. At intersection point, I will go for the higher plant. Cost तो सेम है बट ये प्लांट ओवरयूटिलाइज्ड है एंड ये प्लांट अंडरयूटिलाइज्ड है. सो इसको और आगे जाके इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, हम इसको और प्रोड्यूस कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड देयरफॉर एट ए इंटरसेक्शन पॉइंट मैं SSC1 चूज नहीं करूंगा, मैं SSC2 चूज करूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज आई नो इस प्लांट की और भी कैपेसिटी है, मैं और खींच सकता हूं इसको. SSC1 खींच के कितना खींचोगे? अगर आपको ज्यादा आउटपुट करना है, सपोज कल जाके आउटपुट इंक्रीज होता है, ध्यान देना, और आउटपुट इतना लग रहा है, तो नाउ यू कैन सी द बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर SSC2. अगर कल जाके आउटपुट इंक्रीज करना पड़ा तो SSC2 की कॉस्ट कम रहेगी SSC1 से. समझ में आ रहा है? एंड वी आर फ्यूचरिस्टिक, हमें लगता है कि हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, तो इसलिए इट इज अ बेटर. आप सोचते हो ना कि अगर आप बंगलो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो गांव में, तो आप सोचोगे कि बड़ा बंगलो करेंगे जिसमें 3-4 फैमिलीज इजीली रह सकती हैं. आप आपके 2-3 जनरेशन का सोचते हो ना, या खाली आपका सोचते हो? ऑन सिमिलर बेसिस मैं वही समझा रहा हूँ. हैव ए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. इट इज बेटर टू परचेस SSC2 एंड नॉट SSC1. बिकॉज कल जाके अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो हम इसको SSC2 को ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे एंड कॉस्ट हम कम कर पाएंगे. इफ यू यूटिलाइज ए प्लांट प्रॉपरली, योर एवरेज कॉस्ट विल डिक्रीज. इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे गो फॉर द हायर कैपेसिटी प्लांट. ऑन सिमिलर बेसिस SSC6 पे कौन सा प्लांट चूज करोगे? आप मुझे बोलो. SSC6 पे यू कैन प्रोड्यूस, सॉरी, OQ6 आउटपुट यू कैन प्रोड्यूस यूजिंग SSC2 and SSC3. तो आप मुझे बोलो which is a better for you? Which is a better for you? आप दोनों, आप बोलोगे सर SSC2 पे भी सेम कॉस्ट लग रही है, SSC3 पे भी सेम कॉस्ट लग रही है, बट जो आप अगर देखोगे ना ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट देखोगे, सॉरी, अगर ये पॉइंट देखोगे, दिस इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ SSC2. आप राइजिंग पोर्शन पे काम कर रहे हो, मतलब आप SSC2 को बहुत खींच रहे हो, ओवर यूटिलाइज्ड है. एंड अगर वही आप SSC2 पे देखते हो, यू आर वर्किंग ऑन ए डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ SSC2, वो अंडर यूटिलाइज है, मतलब कल जाके हम उसको ठीक से यूटिलाइज कर सकते हैं. सो इट इज बेटर टू गो ऑन हायर कैपेसिटी प्लांट SSC3. So can I say last 1 minute and then I will end the lecture. Up to output OQ1. Up to output OQ3. OQ3 तक I am working on SSC3, SSC1. From OQ3 to OQ6 तक, OQ6 नहीं करना है, but OQ6 तक I am working on SSC2. And beyond that, SSC3. Up to intersection point, पहले वाली SSC, intersection point से नेक्स्ट वाली SSC, अप टू नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट. लाइक SSC1 कहां तक थी? इंटरसेक्शन ऑफ SSC1 टू SSC2 तक, वो SSC1. फिर जब इंटरसेक्शन मिला वहां से उसको पकड़ के SSC2 कब तक? टिल द नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ SSC2 एंड SSC3. बट जब SSC2 एंड SSC3 का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला तो SSC3 को सिलेक्ट किया एंड आगे चले गए. ठीक है? तो दिस एग्जांपल विल हेल्प यू टू चूज द प्लांट, कौन से प्लांट पे काम करना है. ठीक है? योर लेक्चर एट 1:30, मेक इट फास्ट. लॉ का लेक्चर है, ठीक है? इवनिंग में ऑब्वियसली अकाउंट्स का लेक्चर है. आई विल बी स्टार्टिंग एट 5:45. थैंक यू. और कल हमारा
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व खत्म हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।